Good morning, Principal Sir. The chief guest of today's webinar series, Dr. Pradeep Bhandari, Principal Doaba College. On behalf of Mathematics Department, I welcome Principal Sir, eminent speaker Dr. Vipul Sharma, faculty members from other colleges and faculty members from Doaba family. Last but not least, my lovely student who joined us to grace the webinar. I welcome you all in this DBT sponsored webinar series, and today is the first lecture on Introduction to MATLAB. I want to start with one quote. The illiterates of 21st century will not be those who cannot read and write, but will be those who cannot learn, unlearn, then relearn. The essence of science lies in willingness to abandon theory X if theory Y is of better quality. The purpose of doing this webinar series is to make mathematics interesting, interactive, and practical oriented. Now I request Head of Department, Professor Arvind Nanda. Sir, over to you. To knowledgeable views by Dr. Vipul Sharma. He has decided to take up this webinar on Introduction to MATLAB. Dr. Sharma is currently working as an assistant professor in Department of Computer Science and Engineering at IK Gujarat, Punjab Technical University, Amritsar campus. He has a rich teaching and research experience of over 10 years at JP University Solan, DAV University Jalandhar, Lovely Professional University Jalandhar, and Punjab University Chandigarh. While pursuing his PhD from Punjab University, he received fellowship and PGU Research Awards. We are thankful that he accepted our request of interacting with students. I hope our session of today will prove fruitful for the students. I am also grateful to our esteemed principal, Dr. Pradeep Bhandari, under whose leadership this webinar is being conducted. Our principal has a vision to make Doaba College one of the best colleges of Punjab, and we are striving forward for it. Now, I request Principal Sir to say few words. Thank you. So good morning to all of you. So today is a very important day that Department of Mathematics of our department of our college is organizing this webinar. I was just surfing through the participants who have joined, and I just noticed Professor O.P. Arora is there. So it's very touching that the old teachers with whose blessings the college is progressing, they have joined this. Welcome to this webinar, sir. And I also welcome Dr. Vipul Sharma, who is the resource person for this webinar. So our mathematics department is a vibrant department of the college who have worked hard to get into this DBT Star College status scheme. The motive of the scheme is to deliver the practical aspects of sciences and mathematics to the students. And because math is mother of all sciences, so it becomes all more important for this department to strive hard and to reach student in a more practical way and to tell them how this beautiful subject is very relevant in in all walks of life and every stage of life. So I congratulate the department, and I once again welcome the resource person for this particular webinar, and I welcome all the participants of this particular webinar. And on behalf of my whole college, and today because the organizers are Department of Mathematics, and on their behalf, I want to assure that we will be working hard for teaching and learning, and not only teaching and learning of students, we will be focusing more on
teaching, learning, and application aspect of the teaching and learning. So this corona has, apart from the challenges, the negative effects which have been given by this pandemic in our life, this has given us an opportunity to explore many new things, many new facets which were earlier ignored. I remind the time that in 2017, me along with the team of senior teachers from the college went for expert committee meeting of college with potential for excellence to the UGC. And in that particular meeting, principals from various colleges from South, from Northeast, they were made to visit that UGC office to present their case before the expert committee. And we all were talking about, isn't this possible through video conferencing? That so much cost have been saved and other things. So at that point of time, everybody was saying that, no, this is not practical. But today, just see that not only this education, everything has gone online. And yesterday evening, I was talking to my mother. The online satsangs are being organized on this particular medium. So that way, the corona has given us an opportunity to explore new ventures, to see the life in a new perspective. So I hope the human race has always, found the new ways to get the positives out of negatives. So this will be again an opportunity for all of us to get more positives out of life, to find to touch those aspects of life which were earlier ignored, or I will say unexplored. So again, I welcome you all in this webinar, and I hope this webinar is going to be a very learning experience for all of us. Thank you. Thank you, sir, for your visionary thoughts. And our principal, sir, is also up to date with the latest technology, and with his innovative technological innovation, sir has made outstanding contribution in achieving so many laurels to college. And sir, we wish that our college touched new heights in your leadership. Thank you, sir, for taking time for this event. Thank you, sir. Thank you very much. Now, thank you, sir. Now, I invite Dr. Rajiv Khosla, the head of biotechnology department, to give a brief report of DBT scheme. Yes, over to Dr. Rajiv Khosla. Thank you, Professor Gulshan Sharma. Just a minute, sir. Just over to you, sir. Just 1 second. Where is ma'am, have you spotted us, sir? I have joined with the Professor. Okay, sir. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Yes. Yes, sir, please. So a very good morning to ladies and gentlemen, esteemed principal, sir, Dr. Pradeep Bhandari, our resource person of today's this webinar series, Dr. Vipul Sharma, head of the PG Department of Mathematical Sciences, Professor Arvind Nandaji, scheme coordinator of DBT Star Scholar Scheme, Professor Gulshan Sharma, Dr. Bharti Gupta, senior faculty members, my dear colleagues, and dear participants. So first of all, I would like to take this opportunity to extend a very warm welcome to all of you in this DBT sponsored webinar series on MATLAB. The credit again for organizing this series goes to our worthy principal, sir, Dr. Pradeep Bhandari, who remains an inspirational pull for organizing such activities with which we can provide a suitable बहुत कट मेरी बात तो बहुत ऊंची से मेरी आवाज कट milieu or platform to the students for having advanced learning in the domains of mathematical sciences. Actually, the mandate of this DBT Star Scholar scheme is to just provide a platform where the students, they can conceptualize the different aspects of sciences in a holistic manner. So here the times they have been gone when we are talking about compartmentalization, where the people from biology background, they need not to study mathematics, or people from arts background like that. Now the thing is, you have to have a holistic approach towards learning, towards teaching.
towards both sides. So given this ongoing persisting pandemic, COVID-19 pandemic, you have seen the governments, different governments, they are adopting the strategies which are based on mathematical algorithms that predicts about the epidemiological aspects of the infectious diseases. So the thing is, students, they need to learn that you have to have an interdisciplinary or rather transdisciplinary approach to understand globally what is going to happen and what is going on in and around us. So this is a very good, I think, initiative. I congratulate to the departments. I congratulate to Principal Dr. Pradeep Bhandari because this is the first academic activity of DBT Star Scholar scheme, which has been organized under the stewardship of Dr. Pradeep Bhandari. So once again, congratulate to all, best wishes to the department. And I would say these series or these types of programs by the department, they will be really beneficial for the students. Thank you very much. Thank you, sir. Under the persistent efforts of Dr. Rajiv Khosla, the college has attained Star College status. Thank you, sir, for your contribution. Now I call Dr. Bharti, Assistant Professor in PG Department of Mathematics, to give a brief view of Dr. Vipul Sharma. Good morning, one and all present here. I feel privileged to welcome esteemed speaker of the day, Dr. Vipul Sharma. Welcome, sir. On this occasion, I acknowledge the words of our worthy principal, Dr. Pradeep Bhandari, head of the department, Professor Arvind Nanda, and eminent faculty members from various universities and colleges, and my dear students. Today, I got opportunity to introduce our speaker, Dr. Vipul Sharma, Assistant Professor and in charge, Department of Computer Science and Engineering, and at IK Gujral, Punjab Technical University, Amritsar campus. He is having 10 years experience in teaching and research. Our resource person has published more than 19 research articles in reputed journals and conferences. He is currently member of various international professional bodies, including Society of Photo Optimal Instrumentation Engineer, USA. In addition, sir is also holding editorial position in various international journals. Dr. Vipul Sharma is expert in artificial intelligence, medical image processing, data mining, and machine learning. Today, we got opportunity to interact with the academic speaker as he will deliver the lecture on Introduction to MATLAB. Without taking much time, I would like to hand over the session to Professor Gulshan Sharma. Sir, over to you. Thank you. Now, Dr. Vipul Sharma, I do not want to become obstacle in between you and students. Students, now the main star of the event, Dr. Vipul Sharma. Sir, the mic to you. Over to you. Thank you, sir. Thank you, Bharti ma'am, for the nice introduction. And thanks to Principal Sir, Nanda Sir, and Professor Gulshan for giving me an opportunity to interact with you people. And second is, I am very happy that Doaba College has taken this initiative for the students to help them to get familiarized with MATLAB. And for that, they have started this webinar series. So this is very good thing that at graduate level and at undergraduate level or postgraduate level, the students are getting an idea what MATLAB is, because at the time of my PhD, when I started my PhD, so I got introduction of this MATLAB during PhD. So I thought कि ये अगर मेरे को पहले पता होती मेरे बीटेक लेवल में और मास्टर डिग्री लेवल, तो इसमें कई कुछ चीजें हम कर सकते थे. Okay, so not wasting much time. So I will start my lecture, that is Introduction to MATLAB, and this is I think first lecture. So most of the people might be they are familiarized with this term MATLAB, and let's start with this session. I will share my screen. Just give me some time. So is the screen visible to all?
So I think the screen is visible and my voice is audible to all. Okay, so if any problem is there, then you can ask me. So I think students are also there in this session, and the thing is this MATLAB, a wonderful tool that was developed late in 1970s. One of the developer of this tool who developed this particular tool for solving some linear algebra problems and some calculus problems. He basically developed this, he has an idea कि मैं एक ऐसा टूल डेवलप करूं जो मैथमेटिक्स वालों को उनकी हेल्प कर सके, उनकी लीनियर अलजेब्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनकी कुछ कैलकुलस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. दैट पर्सन हैज दिस आइडिया इन हिज माइंड, और उस आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को लेके उसने ये टूल बनाना शुरू किया. इनिशियली दैट वाज नॉट नेम्ड एज मैटलैब. इन 1970 they have just developed one package, they had just developed one you can say that they have written one program that solves the basic linear algebra problems. Okay, and later on in 1986 that person, वो person ने दो बंदों के साथ और मिलके they have developed one company that is MathWorks. So we have to differentiate between these two terms. One is MATLAB and second is MathWorks. So MathWorks is the company that has developed this product MATLAB. So most of the people वो generally confuse हो जाते हैं इस चीज में कि हम MathWorks यूज कर रहे हैं. You are not using MathWorks. You are using one tool that is developed by MathWorks. Okay, so that tool is MATLAB. अब अगर हम MATLAB की बात करें, definitely there are some questions. So whenever a new tool comes, definitely there are certain questions जो हमारे माइंड में आते हैं. वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? The first question is कि ये चीज है क्या? So let's discuss. So in this particular session we will cover these, I will give answer to these particular questions. What is MATLAB? MATLAB है क्या? Second is who uses MATLAB? MATLAB को कौन यूज करता है? Third is for what applications MATLAB is used? किन एप्लीकेशंस के लिए हम MATLAB को यूज कर सकते हैं? What are the capabilities of MATLAB? MATLAB में क्या ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि हम इसको एज एक टूल यूज करें फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस. एंड अनदर क्वेश्चन इज जो हमारे माइंड में आता है, इज MATLAB हार्ड टू लर्न? क्योंकि स्टूडेंट वो चीज करना चाहता है जो आसान है. ओके, एंड ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा, क्या मैं MATLAB सीख पाऊंगा. ओके, एंड अनदर इज कैन आई स्टिल यूज इट इफ आई डोंट नो हाउ टू कोड? अगर मेरे को कोडिंग आती ही नहीं है, अगर मेरे को प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है, तो क्या मैं MATLAB को यूज कर सकता हूं? So this is the another question that generally students or any the person who is new to this particular टूल, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मेरे को कोडिंग नहीं आती, आई एम नॉट फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड, तो क्या मैं ये टूल यूज कर सकता हूं? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम्स इन MATLAB. यू नो, MATLAब एक ऐसा सागर है जो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उसको 1 आवर में कवर कर लें. सो ड्यूरिंग डिस्कशन विद प्रोफेसर गुलशन, ही टोल्ड मी कि आप सर थोड़ा अभी इंट्रोडक्शन का कवर करना. सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर दीज आर द क्वेश्चंस जो हम कुछ इनके आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमें जब तक एक टूल के बारे में पता नहीं होगा कि ये टूल हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल अंडर दिस टूल, तो हमें क्लैरिटी नहीं होगी. सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल डिस्कस कि एक जो मैथमेटिक्स वाला पर्सन है, जो एक, बिकॉज आई फील कि मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी अदर फील्ड. कोई भी फील्ड है उसमें मैथमेटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है. अगर किसी को मैथ्स की क्लैरिटी नहीं है तो मेरे को लगता है कि वो उस फील्ड में एक्सेल करना उसके लिए डिफिकल्ट होगा. सो कमिंग टू दिस जनरल बैकग्राउंड, पहले हम ये देखते हैं कि MATLAB है क्या. MATLAB जो है वो, उसमें 2 वर्ड्स हैं, वन इज मैथ एंड सेकंड इज लैब. सो मैथ कहां से आया? सो मैथ जो वर्ड था
मैंने जो आपको भी बताया कि जो इसका डेवलपर था जो बंदा 1970 में जब उसने इस मैटलैब को बनाना, उस पैकेज को बनाना शुरू किया था, उस टाइम पे उन्होंने इसको नाम मैटलैब नहीं दिया था। एंड लेटर ऑन ही रियलाइज्ड कि उसके सारे इस टूल में जितना भी काम हो रहा है उसमें जो बेसिक फंडा है दैट इज मैट्रिक्स। ओके, एंड दैट मैट्रिक्स ही इसमें यूज होती है। हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग मैट्रिसेस, तो उन्होंने इसको नाम दिया मैट लैब। मैट्रिक्स से मैट आया और लेबोरेटरी से, क्योंकि इसमें हम वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंटेशंस, वी आर डूइंग सिमुलेशंस, वी आर डूइंग एनालिसिस, so it is a kind of laboratory. Okay, so they have given this name mat lab, matrix laboratory. So this is the name, how this name has been derived. Okay, and the second most important thing in this particular MATLAB is whenever you purchase any MATLAB version or whenever you download any MATLAB version, it is written like this, R2021A. So R2021A is the latest version. So 2021 is the year. This is the year of this particular release. R is for a release. कि जब MATLAB के काफी सारे 1986 से MATLAB के versions जो हैं वो आने शुरू हो गए. Okay, so 2021 is the latest version. So A is, this is the version that is launched in March. B is the version that is launched in September. So these are the basic things. अब कई students use करना शुरू कर देते हैं MATLAB. अब उनको कई बार बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये R2021A का क्या मतलब है, उनको पता ही नहीं होता कि A है क्या. So these are the minor things that we should know. क्योंकि अगर हमें किसी टूल के बेसिक्स नहीं पता, हम कहें कि मेरे को काम पूरा करने आता है बट मेरे को पता नहीं है ये टूल है क्या, so that is of no use, I think, if you are not able to convey the things properly. So R2021A means 2021 is the year, R is the release and A is the month. That is usually जो MATLAB है, जो MathWorks कंपनी है, वो साल में 2 वर्जन रिलीज करती है. वन इज A एंड सेकंड इज B. A करती है मार्च में, B करती है सितंबर में, सितंबर के मंथ में. ओके, अब अगर हम MATLAB की बात करें, नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड पे जाऊं, जस्ट वेट, So MATLAB is basically an interactive system for doing numerical computations. Now in mathematics, we have numerical analysis part, we have calculus, we have integration, we have differentiation, we have linear algebra, we have so many topics. Now, if you want to solve or if you want to solve any expression, then you have to solve that expression in steps. आपको कुछ steps जो हैं वो follow करने पड़ते हैं. And sometimes if you are doing integration, तो मेरे को लगता है कि वो solve करते करते I have done that in +2, तो उसमें देखा था कि 2-2 पेजेस की इंटीग्रेशन के स्टेप्स बन जाते थे. Now that is just see, try to understand here कि वो एक छोटा सा स्टेप है इंटीग्रेशन, जो एक किसी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे हैं, वो एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमारा इतना टाइम वेस्ट कर देता है, उसको सॉल्व करते करते हम कई बार आधा घंटा भी लग जाता है और कई बार बाद में उसका रिजल्ट हमारा गलत आ जाता है. ठीक है, सो MATLAB जो है उसका बेसिक आइडिया क्या था? दिस इज बेसिकली यू कैन से दैट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस, फॉर एनालिसिस पर्पस, इन चीजों के लिए ये बना था. और इसमें बेसिक चीज क्या थी कि डोंट वेस्ट टाइम इन डूइंग द थिंग्स, डिवोट टाइम इन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द थिंग्स. आपको एक कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया, उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपके कुछ स्टेप्स हो सकते हैं. अब आप कहोगे एक एक्सपेरिमेंट करना है, सपोज वन एक्सपेरिमेंट इज देयर, आपने फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट करना है, पेंडुलम के रिलेटेड करना है. नो, फॉर कैरिंग आउट दैट एक्सपेरिमेंट यू नीड वन पेंडुलम, यू नीड अपरेटस, आपको काफी कुछ चाहिए. अब एक चीज है कि आप मार्केट में गए, वो चीजें खरीद के लेके आए, फिर आपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, देन यू हैव टू एनालाइज कि अच्छा जी अब इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो द बेसिक पर्पस ऑफ दिस MATLAB इज कि वो सारी एक्सपेरिमेंटेशन आप इसमें सिमुलेशन कर सकते हो. एवरीथिंग इज देयर, पेंडुलम इज देयर, and the environmental conditions are there. You can set the parameters कि इतनी friction है, ये है, सारा कुछ आप select कर सकते हो. And the thing is, you will get the results. Now,
what is the work of the students, what is the work of the researcher, what is the work of this academician to analyze the output. कि अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो फिर क्या आउटपुट आई है, अगर मैं फ्रिक्शन बढ़ा रहा हूं तो फिर क्या रिजल्ट आया है. So that is the main purpose of this MATLAB tool. So in the next line it is written that the main author of this MATLAB tool is this Cleve Moller. He developed the whole package in 1970, and in 1984 or 86 they have developed this MathWorks company, and under MathWorks company they have developed this particular named tool MATLAB. Okay. And another beauty of this tool is in MATLAB, you have 100 of the already implemented algorithms. Now, suppose if I want to find any element in a list, one list is there in which certain elements are there. 1, 4, 5, 15, 20, 18, 19, 20. No, I want to find particular element from the list. No, in order to search, we have a linear search and binary search. अब देखो, अगर आपने लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च परफॉर्म करनी है, देन यू हैव टू राइट सर्टेन कोड. आपको कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, आप तभी उसको सर्च कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर ऐसे सर्च नहीं करेगा. एज ए ह्यूमन बीइंग आप उसमें सर्च कर सकते हो कि यस ये नंबर इसमें है कि नहीं है. बट व्हाट अबाउट कि अगर आपने एक कंप्यूटर को ये चीज देनी है कि आपने एक इनपुट करवाई लिस्ट और वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर दे कि इसमें ये नंबर है कि नहीं है. सो दिस इज बेसिकली सर्चिंग. अब अगर एक स्टूडेंट ने उसको कोई ऐसी एप्लीकेशन है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं इसकी. जब आप कोई भी फाइल ओपन करते हो, आप कंट्रोल एफ करते हो. कंट्रोल एफ इज फॉर फाइंड. आप पर्टिकुलर वर्ड को सर्च कर रहे हो. अब सर्च इज सर्चिंग. अब उसके बैकएंड पे क्या है, एक एल्गोरिथम है, उसके पीछे एक कोड है जो चल रहा है. अब आप कहोगे कि मेरे को तो सर्चिंग आती नहीं है, मेरे को तो एल्गोरिथम आता नहीं है, इसका मतलब कि आप काम नहीं कर सकते. सो मैटलैब इज फॉर दैट पर्पस. Already implemented algorithms are there in this particular tool. आपको क्या करना है, आपको जस्ट वो जो हम कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है उसका ऑलरेडी कोड अवेलेबल है. ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल. ओके, जस्ट यू हैव टू यूज. और वो यूज कैसे करनी है, दैट वी विल सी इन द लेटर ऑन लेक्चर्स. की जो लेटर ऑन लेक्चर्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि वो कैसे यूज करते हैं. लाइक आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि जब आपका रिजल्ट आता है, किसी सीबीएसई का रिजल्ट आता है, या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का रिजल्ट आता है, जीएनडीयू का रिजल्ट आता है, तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर आप जस्ट रोल नंबर पुट करते हो और आप सर्च बटन प्रेस करते हो. जैसे ही आप सर्च बटन प्रेस करते हो तो सर्च बटन प्रेस करते ही आपको आपका रिजल्ट दिखता है. अब एज ए यूजर आपको ये लग रहा होता है कि रोल नंबर पुट करो और आंसर आ गया, बट उसके बैकएंड पे a lot of coding is there, a lot of program is there जो आपको एज ए यूजर विजिबल नहीं है. सो आप इसमें इनबिल्ट मैटलैब में क्या है, इनबिल्ट फंक्शंस हैं. आपको अगर एक लिस्ट में कुछ सर्च करना है तो आपको जस्ट वो लिस्ट प्रोवाइड करनी है उस एल्गोरिथम को. एल्गोरिथम बना हुआ है. ओके, एंड इवन यू कैन सी कि इस एल्गोरिथम के अंदर क्या है, क्या कोडिंग की हुई है, वो भी आप देख सकते हो. एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन लेटर ऑन स्लाइड्स. One of the main beauty that I want to tell you is powerful operations can be performed using just 1 or 2 commands. ये मैं अभी आपको लाइव डेमो करके बताऊंगा कि एक बहुत बड़ा काम हम एक सिंगल कमांड के साथ कैसे कर सकते हैं. ओके, सो वी विल सी दैट थिंग. सो दिस इज द मेन ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल कि जस्ट इन 1 or 2 commands we can do our work. And second is excellent graphic facilities are available. आप जब कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम करते करते हमारे कुछ ग्राफ्स जनरेट होते हैं. आपने देखा होगा कि आपके पास एक्सेल में डेटा होता है. जब एक्सेल में डेटा होता है आप उसके ग्राफ्स बनाते हो. नो ग्राफ कई बार क्या होता है कि मेरे पास डेटा होता है, मेरे को यही नहीं पता होता कि इसका कैसा ग्राफ मैं बना सकता हूँ. नॉर्मली हम वही लाइन ग्राफ, बार ग्राफ यही बनाते हैं. हमें पता ही नहीं होता कि और कौन से ग्राफ्स हैं जो मेरे डेटा के ऊपर फिट कर सकते हैं. सो मैटलैब हैज दिस प्रोविजन. आपके पास अगर एक डेटा है, नो मैटलैब विल टेल यू कि आप ये ग्राफ भी बना सकते हो, आप ये भी बना सकते हो, आप ये भी बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन एरिया एंड डिपेंडिंग अपॉन एनालिसिस पार्ट कि आपने कैसा एनालिसिस करना है. ओके, सो नेक्स्ट इज हु यूजेस मैटलैब. ये तो हमारा हो गया कि मैटलैब है क्या. सो मैटलैब इज बेसिकली ए टूल जो हमारी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स
ईच एंड एवरीथिंग जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपको लगता है कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, वो मैटलैब में पॉसिबल है। एंड वन ऑफ द अनदर थिंग इज एक्सीलेंट ग्राफिक फैसिलिटीज जो मैटलैब आपको प्रोवाइड करता है। ये तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूजेस मैटलैब? मैटलैब को कौन यूज करता है? नो आई थिंक ऑल द इंजीनियर्स, all the scientists, students, academicians, researchers. So जितनी बड़ी लिस्ट आप बनानी है बना सकते हो। Each and everyone is using this particular tool that is MATLAB. The reason is due to the advantages of these tools, due to the benefits of using this tool, क्योंकि ये एक ऐसा tool है even the people of bigger companies like Rolls-Royce or Boeing, or you can say that NASA, ISRO, DRDO, they all are using these type of tools for analysis purpose. अब एक रॉकेट है, एक रॉकेट को ऊपर हमने स्पेस में भेजना है, so it is not possible ना कि मैं यहाँ से एक रॉकेट बनाऊं और ऊपर छोड़ दूं और बाद में पता चला कि नीचे गिर गया। Okay, so this is a kind of simulation, this is a kind of project that you want to analyze कि अगर आप एक रॉकेट आपने स्पेस में भेजना है, कितना पेलोड होना चाहिए, कितना सारा कुछ होना चाहिए, इतनी एयर में फ्रिक्शन है। So you can create an environment in this particular tool. आप इस टूल में एक ऐसा environment create कर सकते हो जिसमें आप उस चीज का सारा एनालिसिस कर सकते हो, आपको सारे ग्राफ्स बन के आएंगे, आप ग्राफिकल एनालिसिस कर सकते हो, आपको डेटा तो मिलेगा ही मिलेगा, डेटा दैट न्यूमेरिकल वैल्यूज तो आएंगी ही आएंगी आपको फाइल में, प्लस आपके पास कुछ ग्राफ्स बन के आएंगे कि आप ग्राफिकली भी उस चीज को एनालिसिस कर सकते हो। ओके, सो आई हैव पुट हियर लिंक, इफ टाइम परमिट्स डेफिनेटली आई विल शो यू दिस लिंक कि कौन-कौन सी चीजें हैं जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज ने मैटलैब के साथ तैयार की हैं। ओके, सो समटाइम्स द बेसिक पर्पस ऑफ मैटलैब इज, कई बार क्या होता है कि हमें कोई कंसेप्ट याद आता है, हमें लगता है कि दिस इज द कंसेप्ट दैट आई वांट टू इम्प्लीमेंट। ओके, अब कई बार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, अब रिसोर्सेज नहीं है तो क्या हम उस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे? सो मैटलैब इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी। अगर रिसोर्सेज नहीं भी हैं, use this tool, create the environment, simulate that environment and analyze the output. Okay, so MATLAB, the basic purpose is this. Next is, for what applications MATLAB is used? अब इस स्लाइड में मैंने कुछ एप्लीकेशंस लिखी हैं जिन एप्लीकेशंस के लिए MATLAB को हम यूज कर सकते हैं। So these are the broader areas. These are the broader areas where MATLAB is being used. And second is, अब हमें लगेगा कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम, इसमें मैथमेटिक्स कहाँ आ गया? हम तो मैथमेटिक्स वाले हैं। सो आई थिंक कि नन ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम देम इज, कोई भी चीज इसमें पॉसिबल नहीं है अगर हमें मैथ्स नहीं आता। सो इफ यू वांट टू डेवलप ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम लाइक गूगल कार्स हैं, अब गूगल कार्स वाले भी ये सिस्टम यूज कर रही हैं, ऐसा तो नहीं है ना उन्होंने एक गूगल कार बनाई और रोड पे भेज दी सीधी। They have analyzed the whole concept in this particular tool and then they have developed. ये नहीं है, कोई भी चीज बनने से पहले उसका एक एनालिसिस होता है। So basically this is a kind of simulation tool also. So automated driving systems, अगर आपने कुछ डिजाइन करना है, ऐसा आपने उसका सिमुलेट करना है, आपने उसकी टेस्टिंग करनी है, तो this is one tool where you can develop these kind of scenarios related to automatic driving system. अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि एक ये टूल में कैसे गाड़ियां बनाएंगे, कैसे रोड बनेगी, कैसे क्या होगा ये? These all things are very easy because you have tool boxes for doing these kind of things. अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कभी ये किसी ने सोचा था कि हम यहाँ पे बैठे हैं, I am at this place, I am in अमृतसर and गुलशन सर is in जलंधर। कभी किसी ने ये चीज सोची थी कि कोई ऐसी चीज बन जाएगी कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सर वहां पे बैठे हैं और हम इतनी दूर से बैठ के बात कर सकते हैं? जब ये चीज किसी ने कही होगी, एक रिसर्चर थे, उन्होंने जब ये चीज कही कि मैं एक ऐसी चीज बना दूंगा, एक बंदा यहाँ पे बैठा है, दूसरा बंदा वहां पे बैठा है, हम आपस में बात कर सकते हैं, डेफिनेटली उनको एक बार बेवकूफ सभी ने कहा होगा कि ये बेवकूफ है, ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है। ओके, बट टेलीफोन बन गया,
उनके बाद एक और रिसर्चर आ गए, उन्होंने कहा कि इसने क्या किया, इसने तो एक वायर लगा दी, दो चीजों को कनेक्ट कर दिया, सिग्नल वायर में से जा रहा है और ये तब बात कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं कही। अनदर रिसर्चर केम, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा तार ही नहीं होगी, वायर ही नहीं होगी, दैट मोबाइल फोन। ओके, तो ये सारी चीजें जब ये टेक्नोलॉजीज आती हैं तो ये नहीं है कि ये मार्केट में डायरेक्टली टेक्नोलॉजी आ जाती है, मार्केट में आने से पहले वो सारी चीजों का एनालिसिस होता है, एंड दीज आर द टूल्स जो हम यूज करते हैं फॉर एनालिसिस पर्पस। नाउ इन इंडिया वी आर यूजिंग दिस 4G टेक्नोलॉजी, अर्लियर वी हैव यूज्ड दिस 3G और 2G। ओके, नाउ अब 5G के ऊपर रिसर्च चल रही है। अब ऐसा तो नहीं है ना 5G के लिए उन्होंने टावर लगा दिए, बड़ी बड़ी सारा कुछ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, बाद में पता चले कि नहीं 5G तो जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। नो, व्हाट रिसर्चर्स आर डूइंग इज, व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग इज, they are using this particular tool for analyzing the different things. Okay, you have to create one environment. आपने एक फोन रख दिया, मान लो एक छोटा सा environment स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं कि मान लो एक फोन है, दूसरा फोन है, उन्होंने एक environment क्रिएट किया कि अगर मैं यहां से डेटा दूसरे फोन पे भेज रहा हूं कितना डेटा लॉस हो रहा है। दिस कैन बी द वन प्रैक्टिकल, दिस कैन बी वन प्रैक्टिकल कि अगर मैंने ये चेक करना है कि मेरा कितना डेटा लॉस हो रहा है, क्योंकि देखा होगा आपने कि जब हम सपोज आई एम टॉकिंग, आप कुछ बोल रहे हो, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम कई बार डेटा लॉस हो जाता है। तो अगर मैंने ये फाइंड आउट करना हो एक छोटा सा प्रैक्टिकल कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितना डेटा लॉस हो रहा है एक्चुअल में, ओके, सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर टूल। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस। आपने देखा होगा कि आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो, अब एंड्रॉइड फोन में क्या है, कुछ एप्स होती हैं, अब उन एप्स में क्या है कि आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हो, अब आप अपनी सेल्फी खींचते हो, मुंह बद्दा सा होता है, तो जब वो सेल्फी प्रोसेस होती है तो इतनी क्लैरिटी आती है कि आपको लगता है कि आपकी ये फोटो ही नहीं है। ओके, सो अब आप ये देखो कि आपने एक ऐप यूज की, आपने अपनी जो फोटोग्राफ थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आपने एज ए स्टूडेंट या रिसर्चर क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया, आपने ऐप इंस्टॉल की, आपने उसके बाद इमेज अपलोड की और उसके बाद इमेज आपको आउटपुट मिल गई। बट क्या जो ऐप है उसके अंदर कुछ नहीं है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड उस ऐप के अंदर कितने इमेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम्स होंगे जो आपके फेस को डिटेक्ट करके, जो आपके मोल हैं पे चेहरे पे, जो छोटे छोटे मार्क्स हैं, वो सारे उसको रिमूव कर देता है। व्हाई नॉट द नोज? आपने कभी देखा है? वो मोल तो डिटेक्ट कर देगा और मोल को ही रिमूव करेगा। एक छोटा सा कोई, जिसको हम कुछ कई बार कट लगते कहते हैं, कट लगा हुआ है, उसको रिमूव कर देता है। कभी नोज को रिमूव किया, कभी लिप्स को रिमूव किया, कभी ईयर को रिमूव किया? नो। जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ द एल्गोरिथम्स। अब ये सारे के सारे एल्गोरिथम्स, इमेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम्स इस टूल में अवेलेबल है। Whatever the things you are doing in those apps, you can do in this particular tool. So this is one area, this is one application area जो MATLAB में है। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि आप MATLAB आपने द्वापा कॉलेज में इसका लाइसेंस परचेज कर लिया और स्टूडेंट्स ये सोचें कि अच्छा इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं सारी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करूंगा। नो, just find out the area, just try to find out the area जिसमें आपको लगता है कि हाँ दिस इज द एरिया वेयर आई हैव द इंटरेस्ट, आई एम वेरी गुड इन रोबोटिक्स, मेरे को लगता है कि मैं मैथमेटिक्स का हूं, मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आती बट मैं रोबोट बनाना चाहता हूँ। ओके, आई वांट टू डेवलप वन रोबोट, जब मैं बनाना चाहता हूँ कि अगर मैं रोबोट में ये चीज कर दूं तो मेरी आउटपुट बहुत बढ़िया आएगी। सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर टूल। समटाइम्स अभी एक अभी आपके हेड थे, उन्होंने बोला था दैट इज वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ दिस मैटलैब फॉर डिजीज डायग्नोसिस। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लाइव डेमो में आपको अभी दूंगा कि एक बहुत बड़ा काम जो है, अगर हम सोचे कि हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो डिजीज को डायग्नोस करके रख दे, मैं उसको कुछ डेटा दूं और मेरा सिस्टम मेरे को बता दे कि इस बंदे को डिजीज है कि नहीं है। एज ए जब आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करवाने के लिए कहता है, आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो अल्ट्रासाउंड को देखता है और इसका मतलब वो अल्ट्रासाउंड में कुछ ना कुछ ऐसी चीज देख रहा है जो उसको बता रही है कि इसको डिजीज है कि नहीं है। ओके,
No, what we are doing is we are using this MATLAB tool कि instead of doctor, वो टूल आपकी इमेज का एनालिसिस कर रही है। वो कैसे कर रही है? बिकॉज वी हैव दिस पर्टिकुलर टूल ऑन मैटलैब, हमारे पास एक टूल बॉक्स है दैट इज इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। अब वो इनपुट जाएगी, इनपुट जब जाएगी उस सिस्टम को इमेज, वो उसका एनालिसिस करेगा एल्गोरिथम, वो अपने आप एल्गोरिथम उसमें जो डिजीज बेयरिंग रीजन है उसको आइडेंटिफाई करेगा। हमने ऑलरेडी सिस्टम को ट्रेनिंग दी होगी कि अगर ऐसी शेप होगी तो वो ट्यूमर होगा, अगर ऐसी शेप होगी वो ट्यूमर नहीं होगा। दैट इज ट्रेनिंग जो हम सिस्टम को देते हैं। फिर हम एक मॉडल बना लेते हैं और दैट मॉडल कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग एनी डिजीज। आप उस मॉडल को बना लिया, उसके बाद आप क्या करो, कोई भी इमेज उसको पास करो और वो आपको बताता जाएगा कि ये डिजीज है कि ये नहीं है। एंड इन फॉरेन कंट्रीज ऑलरेडी दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स आर बीइंग यूज्ड वेयर दे हेल्प द डॉक्टर्स इन गिविंग द सेकंड ओपिनियन। कई बार डॉक्टर को भी श्योर नहीं होता कि इस बंदे को डिजीज है कि नहीं है, then they are using these type of systems। वो उस इमेज को सिस्टम को पास करते हैं और वो सिस्टम उनको बता देता है कि ये इसमें डिजीज बेयरिंग रीजन है कोई कि नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन एरिया वेयर मैटलैब यू कैन यूज मैटलैब। इवन आजकल बड़ा एक हॉट टॉपिक चल रहा है डेटा साइंस। सो डेटा साइंस इज एक्सप्लोरेशन ऑफ द डेटा, then building some models, then do some predictive analysis। so data science के रिलेटेड अगर आपने कोई काम करना है तो वो भी आप मैटलैब में कर सकते हो। इवन द पर्सन हु आर वर्किंग इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कुछ बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एकेडमिक फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो उस फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी अगर उन्होंने कोई जीन एक्सप्रेशन डेटा का एनालिसिस करना है तो वो सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस दैट आर विजिबल ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। आई हैव पुट द लिंक आल्सो। आप इस लिंक पे जाके इन पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशंस डाली हैं इनका और डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो। द अनदर एप्लीकेशंस, आजकल एक बड़ा और टॉपिक चल रहा है दैट इज डीप लर्निंग। No, you can do work related to this particular area also। डीप लर्निंग के रिलेटेड आप काम कर सकते हो। आपको लगता है कि आपने कोई सिग्नल प्रोसेसिंग का काम करना है, आपने देखा होगा कि जब आप कोई बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर ईसीजी करवाते हैं। ओके, दैट और दे डू दैट ईसीजी एनालिसिस कि इसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। No, you can do that task in this particular MATLAB also। Just pass the ECG signal, वो आपको प्रोसेसिंग करके बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है। सो द पर्सन्स हु आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, हु आर from physics background, they do this signal processing task in MATLAB। So just see the variability। इसमें देखने वाली चीज ये है, a person from biology, he is also using this tool। a person who is engineer who is doing work of image processing, he is also using this tool। a person from wireless communication background, he is also using this tool। a person from electrical background who is also using this tool। and above all, क्योंकि इस सारी चीजों में क्या यूज हो रहा है, मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स पीपल दे ऑल आर यूजिंग ऑल द थिंग्स। क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना अगर मैं कहूं कि किसी सिग्नल को मैंने एनालाइज करना है, तो इफ आई एम यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर सिग्नल एनालिसिस, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन क्या एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा विदाउट मैथमेटिक्स की नॉलेज से ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। सो मैथमेटिक्स की मैं ये कहूंगा, सो दीज आर द एप्लीकेशन एरियाज फॉर मैथमेटिक्स पीपल। ये मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दिस इज माय एरिया। नो, I think these are the application areas where the students can use their mathematics skills। वो अपने mathematics skills जो हैं वो इनके ऊपर, इन एरियाज के ऊपर लगा सकते हैं। ओके, सो अब देखने में ये एप्लीकेशंस काफी बड़ी बड़ी लग रही हैं, डीप लर्निंग, एम्बेडेड सिस्टम, है ना। हमें लग रहा होगा कि ये काम कैसे होगा, अभी हमें ये नहीं पता चल रहा। तो आई हैव ऑलरेडी कन्वेड दिस थिंग कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटलैब इन 1 hour लेक्चर। ओके, सो एवरीथिंग डिमांड्स टाइम। जब आई बिलीव इन प्रैक्टिस, आई डोंट बिलीव इन listening to the things। I believe in
basically the practicing the things, कि जब तक आप चीजों को इंप्लीमेंट करके नहीं देखते, जब तक आप लैपटॉप ओपन करके उन चीजों को करके नहीं देखते, जब तक आप एक्सपेरिमेंटेशन करके नहीं देखते, आपको सुनी सुनाई बातें जो हैं वो डिफिकल्ट ही लगेंगी। जब हम काम करना शुरू करते हैं तब हमें एक फील आनी शुरू होती है कि हाँ ये चीज इसमें हो सकती है। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड इज जो हमारा एक क्वेश्चन था, आई थिंक वी हैव कवर्ड दीज 2-3 क्वेश्चंस। मैटलैब होती क्या है, मैटलैब को यूज कौन करता है, क्या क्या एप्लीकेशन एरियाज है जहां पे मैटलैब हम यूज कर सकते हैं, एंड द थर्ड स्लाइड इज मैटलैब हार्ड टू लर्न, क्या मैटलैब बड़ी डिफिकल्ट है लर्न करना? नो, इट इज एक्सट्रीमली इजी। द रीजन इज जब हमें किसी चीज की हेल्प अवेलेबल होती है तो डेफिनेटली चाहे वो डिफिकल्ट चीज भी है तो वो आसान बन जाती है। सो मैटलैब 1986 से ये सॉफ्टवेयर पैकेज चल रहा है। सो 1986 से अगर हम बात करें 14 इयर्स वो और 21 इयर्स ये, तो जिस चीज को आए हुए अराउंड 40 इयर्स हो गए हैं, तो उसकी तो हेल्प ही इतनी अवेलेबल है कि आप नेट पे भी सर्च करोगे, आप जस्ट ये चेक करोगे कि मेरे को एक स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी नंबर का, तो मैटलैब में कैसे किया जा सकता है। यू विल फाइंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, यू विल फाइंड नंबर ऑफ ट्यूटोरियल्स कि ये चीज कैसे की जा सकती है। सो वेरी गुड हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। वन ऑफ द अनदर ब्यूटी ऑफ दिस मैटलैब इज डॉक्यूमेंटेशन। अब मैटलैब में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इतनी की ज्यादा और इतनी की डिटेल्ड दी हुई है कि आई डोंट थिंक कि आपको किसी स्टेप पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। इफ यू वांट टू डू इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो, अब आपको लगेगा कि मैटलैब में इंटीग्रेशन कैसे होगी, मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो न्यू यूजर हूं, मेरे को तो पता ही नहीं है कहां पे क्या करना है। जस्ट गो टू इंटरनेट, गो टू गूगल एंड राइट इंटीग्रेशन इन मैटलैब। मैथवर्क्स की साइट ओपन होगी, उन्होंने एक एक स्टेप बताया होगा कि आपको सबसे पहले ये चीज करनी है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, विद एग्जांपल। ओके, सो दिस इज द अनदर ब्यूटी ऑफ दिस टूल कि इसका जो हेल्प सेंटर है, आप कोई काम कर रहे हो, सपोज एज ए फैकल्टी मेंबर यू आर डूइंग सम रिसर्च वर्क और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, जस्ट पुट द क्वेरी and send that query to the MATLAB Central Exchange, that is the portal they are using for queries. जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो उनको वहां पे रिजॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है मैटलैब में, कोई सुनेगा ही नहीं। जस्ट पुट सेंड योर क्वेरी एंड विद इन 24 to 48 आवर्स यू विल गेट द रिप्लाई, एंड माइट बी आपको 1-2 आवर्स में ही उसका आंसर मिल जाए। ओके, so this is another question that we have discussed कि मैटलैब इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। even a person who is not having non computer background, जिसकी कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, वो भी इस टूल को बड़ी आसानी से यूज कर सकता है और अपना काम कर सकता है। दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज मैटलैब कैपेबिलिटीज। अब मैटलैब में क्या ऐसी कैपेबिलिटीज है? वैसे तो हमें एप्लीकेशंस डिस्कस करके उसमें काफी चीजें मेरे को लगता है कि क्लियर हो गई हैं कि जब हमने एप्लीकेशंस डिस्कस की हैं कि हम डीप लर्निंग का काम कर सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, काफी काम है जो कर सकते हैं। और कैपेबिलिटीज, जो मेन कैपेबिलिटीज है वो क्या है? डेटा एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है कि अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी फॉर डिजीज डायग्नोसिस, कि मान लो आपका कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि हाँ सर आई वांट टू पब्लिश और आई वांट टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर कोविड डेटा के ऊपर काम करना चाहता हूँ और मैं कुछ इंटरेस्टिंग फाइंड करना चाहता हूँ कि इस डेटा का एनालिसिस करके मेरे पास कुछ फाइंडिंग्स निकल के आए। ओके, सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर टूल फॉर डेटा एनालिसिस। ओके, एंड सेकंड इज ग्राफिक्स। अब जब आप उस डेटा का एनालिसिस करते हो तो देखो, डेटा इज रॉ वैल्यूज, रॉ फिगर्स, उनको देखने से कुछ नहीं पता चलेगा जब तक ग्राफिकली आपके पास कुछ निकल के नहीं आएगा। और जब ग्राफिक्स आपके पास आते हैं तो ग्राफिक्स आपको उस होल डेटा को विजुअलाइज करके बताते हैं। दे बेसिकली विजुअलाइज द होल डेटा। और एक चीज है कि मैं आपको कोई इमेज दिखाऊं, आप जल्दी अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक है कि मैं आपको कुछ वैल्यूज दिखाऊं, आप इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। सो दिस इज अनदर ब्यूटी ऑफ दिस टूल, दैट इज द sport of graphics and to visualize the data. Next is algorithm development.
आप कोई एल्गोरिथम बनाना चाहते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सर्चिंग करने के कुछ एल्गोरिथम्स है, लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है, जहां अगर आपने सॉर्ट करना है, सॉर्ट मतलब एक लिस्ट दी हुई है, आपने एक ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना है, सो यू हैव डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ओके। अब ये तो है जो ऑलरेडी एल्गोरिथम्स बने हुए हैं। व्हाट अबाउट कि मेरे को लगता है कि मैंने एक नया सर्चिंग एल्गोरिथम बनाना है, ओके, सो यू कैन डेवलप दैट एल्गोरिथम इन दिस पर्टिकुलर टूल। आप इस टूल में नया एल्गोरिथम भी बना सकते हो। और नया एल्गोरिथम देखो, अब मेरे को लग रहा है कि ये एल्गोरिथम बहुत बढ़िया है, आई हैव दिस कंसेप्ट, मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आ गया कि सर्चिंग के लिए अगर मैं ये टेक्निक लगाऊं तो वो ऑलरेडी जितने भी एल्गोरिथम्स हैं उनसे बेटर हो सकती है। बट ये कंसेप्ट आया, अब इसको बेटर प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड सर्टेन प्लेटफॉर्म जिसमें वो आप उस एल्गोरिथम को डेवलप करने के बाद जो भी आउटपुट आ रही है आप उसको कंपेयर कर सको विद लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। फिर ही आपको पता चलेगा कि यस योर एल्गोरिथम इज बेटर देन द प्रीवियस वंस, ओके। सो ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम डेवलपमेंट जो इसमें टूल है, ओके। एंड इवन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ये टूल है, दिस इज वेरी मच पावरफुल टूल। आपने देखा होगा कि इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस यू हैव बायोमेट्रिक मशीन्स फॉर अटेंडेंस पर्पस, और समटाइम्स यू हैव सीसीटीवी कैमरास। आप सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, ओके। नो सपोज आपने एक सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, आप उसको मैटलैब के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। आप किसी भी हार्डवेयर को मैटलैब के साथ इंटीग्रेट करके आप जो डायरेक्ट आउटपुट आ रही है, जो भी आपको आउटपुट आ रही है, आप डायरेक्ट उसका एनालिसिस कर सकते हो इसमें। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। सपोज आई वांट टू वर्क ऑन लाइव डेटा। लाइव डेटा मतलब आपने एक सिंपल सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, आपने क्या किया, उसको मैटलैब के साथ आपने हार्डवेयर जो था उसको मैटलैब के साथ कनेक्ट कर दिया। अब करना कैसे है ये आपको अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट वेरी सिंपल वर्क, ओके। क्योंकि मैटलैब में ये सारी फंक्शनैलिटीज दी हुई हैं और प्रॉपर वे में दी हुई हैं कि इसको ऐसे यूज करना है। अभी आपको ज्यादा इसलिए लग रहा होगा बिकॉज वी आर टारगेटिंग मैनी एरियाज। स्टार्टिंग पे डिफिकल्ट कई बार लगता है। द थिंग इज बिकॉज आई एम नॉट फोकसिंग ऑन वन एरिया। द रीजन इज माइट बी आपके स्टूडेंट्स, जो मैं नहीं जानता कि सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं या क्या है, हो सकता है कि कोई एक या दो स्टूडेंट्स का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो कहें कि नहीं मैंने तो इस एरिया में काम करना था, है ना। हो सकता है वो मेरे को बताया कि नहीं बताया, ओके। So this is another option that is available in MATLAB, that is you can directly connect your hardware with MATLAB, और जो आपकी पिक्चर्स या जो वीडियोस आपकी सीसीटीवी कैमरा में बन रही हैं, यू कैन यूज MATLAB फॉर एनालिसिस पर्पस। एनालिसिस पर्पस मतलब आपकी MATLAB ऑटोमेटिकली आपको बताती जाएगी कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आया बीच में, कोई कितने पर्सन्स अंदर, इवन सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज व्हाट दे हैव डन इज एक सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, और सीसीटीवी कैमरा लगा के अब देखो कई जगह पे क्या होता है कि 200 बच्चे की क्लास है। There are some certain universities where bigger classrooms are there like auditoriums. अब 200 बच्चे की क्लास लगनी है तो 200 बच्चे की अटेंडेंस कैसे होगी? अगर टीचर अटेंडेंस लेगा तो वो तो आधा घंटा अटेंडेंस में लग जाएगा। What they have done is they have installed one CCTV camera, एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, ओके, एंड दे हैव गिवन ट्रेनिंग टू द सिस्टम। उन्होंने सिस्टम को ट्रेन किया हुआ है, एक मॉडल बनाया हुआ है। वो मॉडल जो है वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को मार्क करी जा रहा है, जैसे ही वो आता है उसकी पिक्चर जो है वो रिकॉग्नाइज होती है, ऑलरेडी डेटाबेस बनाया होता है और उसकी अटेंडेंस जो है वो लगती जाती है। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल इन बाय यूजिंग दिस MATLAB. So another thing, the main thing in MATLAB is very important topic, that is MATLAB apps. The people who are using the older versions of MATLAB might be they don't have an idea of these apps, okay, because earlier ये apps नहीं थी। पहले क्या होता था कि हमने कोई भी काम करना है, एक छोटा सा भी काम करना है, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी, ओके। अगर हमने प्लॉट भी करना है, लाइक I want to draw plot between
एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज। मैंने प्लॉट करना है तो उसके लिए मेरे को कम से कम एक फंक्शन तो लिखना पड़ेगा, प्लॉट एक्स कॉमा वाई। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे, कुछ रिसर्चर्स ऐसे थे जो उनको ये भी डिफिकल्ट काम लगता था कि अब हम मान लो मेरे को प्लॉटिंग करनी है, इफ समवन इज न्यू टू दिस पर्टिकुलर टूल, तो वो कहता था कि मेरे को तो पता ही नहीं है ना कि प्लॉट के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, कौन सी स्क्रिप्ट लिखनी है। वो कहता मैं इतनी भी नहीं लिख सकता। तो व्हाट मैटलैब पीपल, मैथवर्क्स कंपनी, दे हैव डेवलप्ड सर्टेन एप्स। जब आप मैटलैब का लाइसेंस परचेज करते हो, जब नया लाइसेंस लेते हो, तो आपको ये वाली एप्स जो है वो इनबिल्ट मिलती हैं। अब एप्स यूज करने का फायदा क्या है वो मैं भी आपको जब डेमो बताऊंगा मैटलैब का, तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस दीज थिंग्स कि ऐप को कैसे यूज करना और एक ऐप दिखने में कैसी होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस पर्टिकुलर, क्योंकि आई थॉट कि इस लेक्चर में ज्यादातर मैथमेटिशियंस होंगे, सो एक पर्टिकुलर एक सेट ऑफ टूल बॉक्स है जिसमें टोटली मैथमेटिक्स का काम है, and that particular toolbox is related to this application, that is math, statistics and optimization। ये तीन फील्ड्स के रिलेटेड हमारे पास कुछ टूल बॉक्सेस हैं जो मैटलैब में इंक्लूडेड होते हैं। अब सपोज आप कुछ कर्व फिटिंग का काम करने चाहते हो, अब कर्व फिटिंग का काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू नीड कि आपके पास कुछ डेटा है, आपने कर्व को फिट करना है, तो उसके लिए एक टूल बॉक्स हमारे पास है। आपने कोई ऑप्टिमाइजेशन का काम करना है, उसके लिए हमारे पास अनदर टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स एक ऐसी चीज है जिसमें प्री डिफाइंड एल्गोरिथम्स हैं, बने बनाए हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, यू हैव टू यूज दैट टूल बॉक्स और आप अपना काम कर सकते हो। करना कैसे है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टूल बॉक्स एक और टूल बॉक्स है जिसमें आप जितनी भी पार्शियल पीडीई का काम है वो कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड एक टूल बॉक्स है, मशीन लर्निंग के रिलेटेड एक टूल बॉक्स है। सो ऑल दीज टूल्स they are available under this particular application area, that is math, statistics and optimization. So people who are from mathematics background वो ये टूल बॉक्स यूज कर सकते हैं मैटलैब के लिए अपना काम करने के लिए। ओके, एंड अनदर इज दिस सिंबॉलिक मैथ टूल बॉक्स। ये सिंबॉलिक मैथ टूल बॉक्स के अंदर ही सारी चीजें आती हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। गुलशन सर, पेस ठीक चल रही है? आर यू एबल Yes, टू? sir. Yes, sir. Now, please show some applications so that the student can learn. Yes, that. Yes, sir. now I am coming to application area. Okay, theoretical part I have done. Yes, No. yes. You have synthesized very well. Now, Yes, I am sharing MATLAB with you people. Just 1 minute so that I can open MATLAB. Sir, is this particular screen visible? yes, sir. Yes, it's visible. Okay. So this is the basic interface of MATLAB. So this is MATLAB. So जितना भी अभी मैंने लेक्चर दिया है तो वो बेसिकली इस टूल के रिलेटेड था जिसको हम MATLAB कहते हैं, that is Matrix Laboratory. Okay. Coming to this particular window, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड विंडो। ओके, सो कमांड विंडो इज लाइक जो भी आप कुछ करना चाहते हो, दिस इज जस्ट लाइक आपका एक प्लेग्राउंड है जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। दिस वर्क्स लाइक कैलकुलेटर ऑल्सो। अगर मैं यहाँ पे आई एम गिविंग यू डेमो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 + 2, ओके, आई हैव रिटन हियर 2 + 2 एंड आई एम एंटरिंग। मैंने एंटर कर दिया, एंटर प्रेस किया तो आंसर क्या मिला? 4। ओके, अब एक पर्पस इस कमांड विंडो का ये है कि जो भी कमांड्स आपने काम करने के लिए रन करनी है, सो दिस इज द एरिया वेयर यू कैन राइट द थिंग्स।
क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा ना। तो ये तो हो गया कि आई एम राइटिंग वन, लाइक मान लो मेरे पास एक ए है, एक ए वेरिएबल है, मैं कहूं कि एक ए है जिसमें मैंने वैल्यू क्या डाल दी 2, ओके, एंड आई हैव अनदर वेरिएबल बी जिसमें मैंने वैल्यू का डाल दी 3, ओके। नो आई एम पुटिंग सेमीकोलन, सेमीकोलन इज, वो भी मैं आपको अभी बताता हूं, लाइन का एंड करने के लिए, सुप्रेस करने के लिए आउटपुट, ओके। नो आई हैव रिटन a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। नो आई वांट टू कैलकुलेट c, मैं एक ऐसी c वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं जिसमें a और b का क्या होगा, सम होगा, a प्लस b। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आ गई, 5। So you can use this particular command window as a calculator. आप इस command window को as a calculator use कर सकते हो, okay। And the second thing is कि suppose we have this particular आपको ये दिख रही होगी slide. So are you able to see this particular slide, word file? Yes, sir. Yes. It's Okay. So I think now I am coming to this mathematics portion. So I am not good in mathematics. So I always take help from mathematics people. Ki what is this? Okay. So I have taken this example. 1 divided by 2 plus 3 square plus 4 divided by 5 into 6 into 7. Now this is one equation. I want to solve this particular equation. अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये equation आपने solve करनी है, so definitely it takes some time. So what you can do is, so this is in MATLAB, this equation 1 becomes 1, क्योंकि ये वाला निशान आपको नहीं मिलेगा ना उसमें MATLAB में, so this particular divided by is like this sign, okay। So I have converted this equation into this way. So mathematics people, you are intelligent, you know okay, how this has come, okay। So now come to this MATLAB. I have written here this equation. Now I want to know the answer of this particular equation, okay, enter। Now the value is 0.7766, okay। So this is the thing कि एक ये छोटा सा एक्सप्रेशन था जो MATLAB ने मेरे को विद इन सेकंड्स में इवैल्यूएट कर दिया, ओके। द थिंग इज कि सपोज आपको ये एक ऐसा सिस्टम बना रहे हो जिस सिस्टम में आपके पास 1000 ऑफ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं। अगर एक स्टूडेंट कहीं नहीं कि मैं तो कॉपी पेन लेके सारा काम करूंगा, सो इज इट पॉसिबल कि वो सिस्टम बना पाएगा? सो दिस इज द बेसिक थिंग आप MATLAB इस पर्पस के लिए यूज करते हो। अब मैं आपको कहूं कि आपने इंटीग्रेशन, एक ऐसा कोई एप्लीकेशन एरिया है जिस जगह पे आपकी इंटीग्रेशन यूज हो रही है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप इंटीग्रेशन खुद करना शुरू कर दोगे वहां पे, ओके। सो आप इस टूल को यूज कर सकते। आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल, दिस इज वन एग्जांपल दैट वी हैव डन। Another example is, suppose we have this expression 3 into 3 into 4 minus 2 into 5. This is exponential 2 minus 3, 5 raised to power 2. This is raised to power 2, this particular letter. So just copy this and paste in MATLAB and enter. So answer is minus 123. So these are very basic things कि this is कि आप किसी expression को evaluate कर रहे हो। Even in mathematics we have those expressions, b square, roots of the equation, okay। You can solve all those type of exercises in this MATLAB tool also. I have taken another example. So is this a particular example visible? I think, है ना? So I am reading this example. The value of the expression y equal to e raised to power minus a sin x plus 10 under root y, ये एक एक्सप्रेशन है और a की वैल्यू दी हुई है 5, x की वैल्यू दी हुई है 2 एंड y की वैल्यू 8। Now you have to compute this expression y. कुछ वैल्यूज आपको गिवन है और आपने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नो अब हम MATLAB में इसको कैसे करते हैं? MATLAB में कैसे करते हैं? हमें a इक्वल टू 5 गिवन है, हमें x इक्वल टू 2 भी गिवन है, हमें y इक्वल टू 8 भी गिवन है। Now write these all things in command window. हमने यहाँ पे लिख दिया, okay, and I have pressed enter. अब ये MATLAB के डेटाबेस में, वर्कस्पेस में ये वैल्यूज चली गई हैं कि a की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 8 है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास मैंने किस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करना था?
y इक्वल टू e एक्सपोनेंशियल माइनस a साइन x प्लस 10 अंडर रूट स्क्वायर रूट y। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, क्योंकि अब exp, आप पूछोगे कि ये exp क्या है। सो exp इज एक्सपोनेंशियल, क्योंकि आपको मैटलैब को बताना पड़ेगा कि मैंने एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना है। साइन इज द नेम ऑफ द फंक्शन जो मैटलैब में डिफाइन है, आप सिस्टम को नहीं बता रहे कि साइन कैसे कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट SQRT इज द फंक्शन, आप मैटलैब को नहीं बता रहे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। दीज ऑल थिंग्स आर इनबिल्ट। अब मैंने क्या किया, ये एक्सप्रेशन लिखा, ये कॉपी करके मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करने के लिए a की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, एंड जस्ट प्रेस एंटर। अब मेरे को y की वैल्यू के आगे 28.2904। सो दीज आर द थिंग्स जो आप इस टूल में बड़ी आसानी से कर सकते हो। आपको उसको सॉल्व कर। एंड सेकंड थिंग इज कि अगर मैं मान लो रिसर्च कर रहा हूं, आई एम ए एकेडमिशियन, मेरे को बहुत मैथमेटिक्स आता है, बट गलती तो हो सकती है ना, चाहे मैथमेटिक्स आता है, आइदर इफ यू आर PhD तो गलती तो कहीं पे भी हो सकती है, एक छोटे से डेसिमल की गलती भी होगी तो आपकी आउटपुट गलत आ सकती है। एंड इमेजिन कि एक छोटी सी गलती के कारण, अगर इफ यू हैव दैट एप्लीकेशन कि आप मैथमेटिक्स की एप्लीकेबिलिटी कहां पे कर रहे हो, इन मिसाइल, नासा इज यूजिंग योर मैथमेटिक्स, नासा इज यूजिंग योर इक्वेशन, और आपने खुद से उसकी वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं, और वो उन्हीं वैल्यूज के ऊपर भरोसा करके वो यूज करते जा रहे हैं, और एक छोटी सी भी गलती हुई तो जो रॉकेट आप ऊपर छोड़ना चाहते थे वो आपके ऊपर गिरेगा। ओके, सो दिस इज द रीजन कि वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ टूल्स, कि आपको, क्योंकि अब इसमें जो एल्गोरिथम्स यूज किए हुए हैं, दे आर द स्टैंडर्डाइज्ड वंस, दे आर द टेस्टेड वंस। इसमें गलती का स्कोप नहीं होगा, क्योंकि दिस इज वेरी, ऐसा नहीं है कि ये एक बंदे ने टूल बनाया हुआ है या दो बंदों ने मिलकर बनाया हुआ है। स्टार्टिंग ये दो बंदों ने बनाया था बैठ के, बट उसके बाद जब ये टूल फुली फ्लैश्ड मैथवर्क्स कंपनी बन गई, अब हजारों लोग हैं जो एक छोटी, अब स्क्वायर रूट का जब, अब एज ए सपोज आप कहो कि अच्छा ये SQRT जो है इसके अंदर क्या है, क्या स्टेप्स हैं जो उन्होंने फॉलो किए हैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, वन कमांड इज देयर, एडिट SQRT। अब मैं इसको प्रेस करूंगा, ये देखो, अब यहाँ पे मेरे पास ही एक फाइल खुली है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि SQRT इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ x जिसका आपने कैलकुलेट करना है। कंप्लेक्स रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इफ x इज नॉट पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो कुछ कंप्लेक्स रिजल्ट्स वो होंगे। कॉपीराइट है उनका, ये फंक्शन कॉपीराइट है मैटलैब वालों का। ओके, अब इसमें ये देखो, इसमें सारा कोड इन्होंने नीचे, वी आर नॉट एबल टू सी द कोड बिकॉज दिस इज अ कॉपीराइट, दे हैव नॉट गिवन अस द परमिशन, अदरवाइज यू कैन सी कि उसके अंदर उन्होंने क्या कोड लिखा हुआ है स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने का। ओके, नो स्क्रीन हमारी भर गई है, देयर इज वन कमांड CLC टू क्लियर द कंटेंट्स ऑफ द स्क्रीन, सो आई एम राइटिंग हियर CLC, दिस विल क्लियर ऑल द कंटेंट फ्रॉम द स्क्रीन। अब एक और हम एग्जांपल करके देखते हैं मैथमेटिक्स की। अब सपोज वी हैव a इक्वल टू 7, b इक्वल टू cos ऑफ a एंड c इज cos HA। ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हम इसको वैल्यूएट करना चाहते हैं। नो, एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर, इसका क्या आंसर होगा? So let's evaluate by using this MATLAB tool. A equal to 7, I want to find B cos A and C cos A. मैं B और C की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, just press enter. So B is 0.7539 and C is 548.3170. Okay, so ये देखो कि आप छोटी छोटी चीजें जो हैं ये इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो और बड़े आसान तरीके से कर सकते हो। Another example that I am taking is, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैटलैब में सारा कुछ जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस होता है। मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स क्या है, रोज एंड कॉलम्स, यही होता है इफ आई एम करेक्ट।
मैट्रिक्स इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर हमारे पास सिंगल रो है, अगर एक ही रो है, तो नॉर्मली वी ट्रीट इट एज ए रो वेक्टर, एंड इफ वी हैव सिंगल कॉलम वी ट्रीट इट एज ए कॉलम वेक्टर। ओके, एंड इफ वी हैव ए सिंगल कॉलम देन दैट कैन बी एज ए एरे, उसको हम एरे भी बोल देते हैं। और मैट्रिक्स क्या होती है? आई थिंक मैट्रिक्स इज बेसिकली मल्टी डिमेंशनल एरे। ओके, सो इफ आई वांट टू क्रिएट वन मैट्रिक्स, अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहता हूं तो वो कैसे करूंगा? सो व्हाट आई हैव रिटन हियर इज, मैंने क्या किया कि a इक्वल टू 16 इज द फर्स्ट, 16 3 2 13, फिर मैंने सेमीकोलन डाल दिया। अब सेमीकोलन का क्या मीनिंग है? 5 10 11 नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, 9 6 7 12 टू नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। सो प्रेस एंटर। सो जस्ट सी हियर, सो दिस इज द मैट्रिक्स जो हमने ऊपर बनाई, ये नीचे आ गई। नो, अगर मैं आपको कहूं कि आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, तो आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है मैथमेटिक्स में करते हो, है ना, वो उलट रोज कॉलम वो हो जाती हैं। सो व्हाट यू कैन राइट हियर इज ए और ट्रांसपोज। एंटर किया, ये देखो हो गया ट्रांसपोज। अब मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे पास ये ए ट्रांसपोज होके आया है, जो मेरे पास आई एम टेकिंग अगेन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल CLC। ओके, दिस इज वन, दिस इज मैट्रिक्स। नो आई वांट टू ऐड, जो मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, हर एलिमेंट में मैं 2 2 प्लस ऐड करना चाहता हूं। फर्स्ट पोजीशन पे भी 2 ऐड हो जाए, सेकंड पोजीशन पे भी 2 ऐड हो जाए, तो मेरे को क्या करना है? a प्लस 2। So these are the basic operations। ये बड़े छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं, ये कुछ भी नहीं है मैटलैब में, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी लो लेवल की चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। अब हमारे पास एक प्लॉटिंग का थोड़ा सा हम करके देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, create x as a vector of linearly spaced values between 0 and 2 pi। linearly spaced values between 0 and 2 pi। एक x एक ऐसा वेक्टर है जिसमें 0 से 2 पाई तक की लीनियरली स्पेस्ड वैल्यूज हैं। अब नेक्स्ट लाइन है, यूज एन इंक्रीमेंट ऑफ पाई बाय 100 बिटवीन द वैल्यूज। पाई बाय 100 का उसमें इंक्रीमेंट करते जाओ, और y जो है वो क्या होगा? साइन वैल्यूज ऑफ x। अब क्वेश्चन क्या है? कहता है क्रिएट ए लाइन प्लॉट ऑफ द डेटा। अब ये एक बच्चों के लिए प्रैक्टिकल भी हो सकता है कि आप मैटलैब में एक प्रैक्टिकल करोगे। अब देखो, आप उनको ये चीज, उनको बोलो कॉपी पेंसिल लेके आप करो, वो करेंगे, प्लॉट बनाएंगे, है ना, ग्राफ लेके, जैसे भी उन्होंने बनाना है। नदर इज यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर मैटलैब टूल। अब आपने क्या किया, जस्ट सी, हमने क्या किया, x हमें पता है, उसने दिया हुआ है x एक वेक्टर है जिसमें 0 से लेके 2 पाई तक की वैल्यूज हैं विद एन इंक्रीमेंट ऑफ पाई बाय 100। हमने क्या किया, 0 इज द स्टार्टिंग वैल्यू, 2 पाई इज द लास्ट वैल्यू, और बीच में इंक्रीमेंट कितना था? पाई बाय 100 का। ये कॉलन जो है ये फॉर्मेट है मैटलैब का, कि ऐसे रिप्रेजेंट करना है जब आपने 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यूज लीनियरली स्पेस्ड विद एन इंटरवल ऑफ पाई बाय 100 लेना, तो ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, अब उसमें नेक्स्ट लाइन में उसने दिया हुआ है कि क्रिएट y एज साइन वैल्यूज x। y क्या है? साइन ऑफ x, और हमने प्लॉट करना है x और y को। अब हमने इसको कॉपी किया x को और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास एक x वाला डेटा आ गया। ओके, इफ आई एम एबल टू शो यू द, ये देखो आप वर्क स्पेस में यहाँ पे आपको x दिख रहा होगा। जो x हमने यहाँ पे एंटर करवाया है, अगर मैं देखना चाहूं कि इसमें क्या वैल्यूज आई हैं, तो आई कैन इवन सी दीज वैल्यूज, 0 0.314, ये सारी वैल्यूज उसमें आ गई 0 से लेके 2 पाई के बीच विद एन इंटरवल ऑफ पाई बाय 100, ये वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट मेरे पास था y इक्वल टू साइन x, मैंने यहाँ पे कर दिया y इक्वल टू साइन x, एंटर कर दिया। अब y भी मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये y की सारी वैल्यूज आ गई। अब मेरे पास x पॉइंट्स भी आ गए और y पॉइंट्स भी आ गए। अब मैंने क्या करना है? प्लॉट। तो मैं क्या करूंगा, एक कमांड यूज करूंगा, दैट इज प्लॉट, किसके? x और y के बीच, एंड आई हैव रिटन हियर प्लॉट x, y। सो एंटर।
आर यू एबल टू सी दिस पर्टिकुलर फिगर दिख रही है आपको? ओके, सो ये एक ग्राफ बन गया। अब आपको लगेगा कि हाँ जी इस ग्राफ में मैंने एक लीजेंड ऐड करना है, तो यू कैन ऐड हियर लीजेंड। ओके, यहाँ पे डेटा 1 वो आप जितना भी जो भी मार्किंग करनी है आप कर सकते हो। इफ यू वांट टू लेबल एक्स लेबल, आप एक्स को यहाँ पे लेबल कर सकते हो, आप लिख सकते हो एक्स एक्स। ओके, इफ यू वांट टू गिव वाई, इवन आप इस इमेज को सेव कर सकते हो। वो बच्चों का पूरा एक प्रैक्टिकल हो गया एक छोटा सा क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द थिंग जो स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं फॉर एनालाइजिंग द थिंग्स, है ना। इसमें क्या है कि बच्चों को अब कई बार क्या होता है कि उनको यही नहीं पता होता कि अगर हम ये साइन एक्स ये यूज करके अगर हम प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ दिखेगा, कैसे आएगा, वो दिमाग में ही रह जाती हैं, वो चीजें हवा में ही रह जाती हैं। सो ये दे कैन एनालाइज दीज टाइप ऑफ थिंग्स बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर tool. Okay, so this is the another example that I have given. Now जो अब मैं मेन चीज ये तो था कि सपोज कि हम यहाँ पे कुछ कमांड्स लिख रहे थे। अब मैंने आपको बताया था कि आप में से कुछ ये भी कह सकते हैं कि अब मेरे को पता ही नहीं, मान लो कि प्लॉट कमांड होती है, कौन सी कमांड यूज करनी है, या प्लॉट के अंदर क्या लिखना मेरे को नहीं पता कुछ भी, फिर मैं कैसे काम करूंगा। ठीक है, देन मैं आपको ये बता दूं कि सपोज CLC मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन। अब आपको ग्राफ किसके बीच बनाना है? दो वैल्यूज के बीच। एक्स मैंने कुछ वैल्यूज ले ली 1 3 4 6 2, ये मैंने कुछ वैल्यूज ले ली। ओके, एंड सेकंड इज मैंने y वैल्यू ले ली, y के मैंने कुछ लिख दिया 3 2 1 5 7। ओके, नाउ ये x और y मेरे पास आ गए। अब मैं अगर वर्क स्पेस में देखूं तो मेरे पास यहाँ पे x में ये देखो 1 3 4 6 2 जो मैंने वैल्यूज ली वो आ गई, और y में जो मैंने 3 2 1 5 7 वैल्यू ली वो आ गई। अब मेरे को नहीं पता, मैं न्यू यूजर हूं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि मैटलैब में प्लॉटिंग कैसे की जाती है। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, जस्ट x को सिलेक्ट करना है और y को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर स्क्रीन में आ रहा है प्लॉट्स, आपने इसको क्लिक किया, जस्ट सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लॉट्स जो आप ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे आ गया कि आपको ये एरिया प्लॉट ड्रॉ करना है, आपको बार प्लॉट ड्रॉ करना है, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है, पाई प्लॉट ड्रॉ करना है, कौन सा प्लॉट, डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल, है ना। अब अगर मैं इसमें से क्लिक कर दूं एरिया प्लॉट कि मेरे को x और y के बीच एरिया प्लॉट कैलकुलेट करना है, जस्ट प्रेस दिस, एरिया प्लॉट बन गया। ओके, आई वांट टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर बार प्लॉट, बार प्रेस किया, बार बन गई। कोई कमांड नहीं लिखी। गुलशन सर, आर यू एबल टू सी दिस these figures, graph figures? Yes, sir. Yes, able to see everything. Yes. Okay, so you want to create 3D graph, bar 3, तो आपके पास ये ग्राफ बन गया। So you are not writing any command, you are not writing any script, कुछ भी नहीं लिख रहे, everything is GUI based, graphical user interface. Okay, so अब मेरा एक यहाँ पे एडवाइस भी है एज ए टीचर कि ये भी यूज करो, बट इसके बैक एंड पे ये काम कैसे कर रहा है वो भी जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर चीज को ब्लैक बॉक्स लेते जाएंगे तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इसके बैक एंड पे क्या कोड है। अब मैं आपको यहाँ पे अगर स्क्रीन पे लेके चलूं तो आप देखो कि जो भी ग्राफ मैं प्रेस करता जा रहा था उसका कोड जो है वो ऑटोमेटिकली बैक एंड पे आता जा रहा है। ये देखो कि मैंने एरिया प्लॉट ड्रॉ करना था, अपने आप ही आ गया, बार प्लॉट ड्रॉ किया, अपने आप ही आ गया, बार 3 प्लॉट ड्रॉ किया, अपने आप ही आ गया। नो, एक आप ये देख सकते हो कि कुछ ऐसे जियो बबल ग्राफ कुछ, है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कैसा एप्लीकेशन एरिया है और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एरिया में आप अपने रिजल्ट्स को कैसे शो करवाना चाहते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन और एनालिसिस पार्ट।
अब कई बार क्या होता है कि हमें कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि कुछ बॉक्स प्लॉट हमें शो करने पड़ते हैं, तो हम बॉक्स प्लॉट यूज कर लेते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन एरिया आप वो यूज करते हो। सो दिस इज अबाउट प्लॉटिंग। आप कोई भी प्लॉट, कोई कमांड नहीं लिखनी, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली जस्ट सिलेक्ट द वैल्यूज, आपको वो सारी ऑप्शंस बता देगा कि इन वैल्यूज के लिए आप ये वाले ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। एक तो ये देखो कितने सारे हैं, कितने सारे ग्राफ्स हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जो मैंने आपको एप्स का बताया था, एप्स मैंने बताई थी कि वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो टोटली GUI बेस्ड हैं, जिसमें आप बस यू हैव टू यूज पर्टिकुलर टूल बॉक्स ऐप यूज करनी है और आपका सारा काम जो है वो GUI बेस्ड हो जाएगा, सारा काम GUI बेस्ड हो जाएगा। सो दीज आर द एप्स, जस्ट सी। So this is curve fitting. So might be you are able to see these curve fitting. This is optimization. This is PID tuner. So depending upon your application area, if you are from mathematics, statistics and optimization field, तो आपके ये tool देखो apps हैं, curve fitting, distribution filter, optimization. Okay, machine learning का आप अगर कोई काम कर रहे हैं, मैं अभी आपको एक ना डेमो, गुलशन सर, do we have time for 5 to 10 minutes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. अच्छा, फिर मैं आपको एक डेमो दे देता हूं जो हम ये ऐप यूज करके, है ना, कि अभी वो सर ने बात की थी कि हम एक डिजीज डायग्नोसिस सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जो कोविड को आइडेंटिफाई करते या नहीं मैं एक मॉडल ऐसा बनाना चाहता हूं कि क्या वो डिजीज को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ओके, That is basically a work that is under machine learning, है ना। अब हम ये सोचें कि नहीं, एज ए स्टूडेंट मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे को तो पता ही नहीं कहाँ से शुरू करना है, या मेरे को तो कोई भी मॉडल पता ही नहीं है कैसे बनाते हैं। तो वेरी इजी वर्क, आपने क्या करना है, जस्ट गो टू दिस मशीन लर्निंग, कहाँ गया, मैथमेटिक्स, दिस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। इसमें एक ऐप आ रही है क्लासिफिकेशन लर्नर, हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो गई। नाउ दिस विंडो इज क्लासिफिकेशन लर्नर। हम अब एक मॉडल बनाने लगे हैं जो हमें ये बता देगा कि किसी बंदे को डिजीज है कि नहीं है। अब ये मॉडल बनाने के लिए देखो, मैं अगर आपको कहूं कि व्हाट इज दिस, सो व्हाट इज दिस, दिस इज मोबाइल। ओके, आप इसको मोबाइल क्यों कह रहे हो, आप इसको मोबाइल इसलिए कह रहे हो बिकॉज दिस लुक्स लाइक मोबाइल। आपको इस चीज की ट्रेनिंग दी गई है कि अगर कैमरा पीछे होगा, ऐसा साइज होगा, ऐसा कलर होगा, ऐसी शेप होगी, देन दैट इज मोबाइल। नो सिमिलर चीज हम यूज करते हैं जब हम डिजीज डायग्नोस करते हैं। नो इफ ट्यूमर इज देयर, तो डॉक्टर क्या करता है, अगर इतना साइज होगा, ऐसी शेप होगी, देन दैट इज ट्यूमर। ओके, तो हमने क्या करना है, हमने सिस्टम को यही चीज सिखानी है कि अगर ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे तो वो क्या होगा, ट्यूमर, अगर ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे तो वो ट्यूमर नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ और समझा जाता हूं। सपोज आपके पास कुछ एप्पल्स हैं, कुछ ऑरेंजेस हैं, आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना चाहते हो जो एप्पल और ऑरेंजेस को क्लासीफाई कर दे, अलग अलग कर दे। इमेज आई, इमेज के बेसिस पे वो कह दे कि ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। ओके, वी हैव दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स वेयर इन इंडस्ट्रीज। ओके, अब वहां पे क्या है, एप्पल का कलर कुछ और है, एप्पल का टेक्सचर कुछ और है, मींस उसके फीचर्स कुछ और हैं, ऑरेंज के फीचर्स कुछ और हैं। हमने ये सिस्टम को ट्रेनिंग देनी है कि अगर ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे तो वो एप्पल होगा, अगर ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे तो वो ऑरेंज होगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे किया ये डेटा हमने सारा किसमें डाल लेना है, एक एक्सेल फाइल में। सो ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड वन फाइल, मेरे पास एक फाइल बनी हुई है, आई हैव दिस दैट फाइल इन दिस पर्टिकुलर, मेरे डेस्कटॉप पे है दुआबा कॉलेज, ये वाली एक्सेल फाइल, फीचर्स ऑल मॉडल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक डेटा है। ये डेटा आपको दिखने में बहुत हैवी बल्क डेटा लग रहा होगा, पर है कुछ नहीं है। ये क्या है, ये अगर मैं पूरी लाइन सिलेक्ट करूं तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो मेरे को बता रहे हैं कि ये क्या है, जीरो। सो जीरो इज कि इस बंदे, अगर ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे तो डिजीज नहीं है। ओके, अब यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे तो ये हमारे पास क्या है, डिजीज है। अब
क्योंकि सिस्टम को बताना पड़ेगा अगर ऐसी ऐसी वैल्यूज होंगी तो वो डिजीज है, अगर ऐसी ऐसी वैल्यूज हैं तो वो डिजीज नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वो आपका प्रेडिक्टिव एनालिसिस करेगा। अब हमने क्या करना है, इस फाइल को मैटलैब में लेके आना है। तो मैंने क्या किया, न्यू सेशन फ्रॉम फाइल। अब फाइल कहाँ पे पड़ी हुई थी, मेरी डेस्कटॉप पे। मैंने डेस्कटॉप पे जाके जो मेरी ये फाइल थी उसको, ये फाइल आ गई, मैं इसको इंपोर्ट करूंगा मैटलैब में। ये मेरा सारा डेटा आ गया, ये सारा डेटा आ गया मैटलैब में। अब आप ये देख रहे होंगे कि बाय यूजिंग दिस ऐप, जो हमारा एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है मशीन लर्निंग वाला, वो हम विद इन स्टेप्स करते जा रहे हैं और हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे हमें एक मॉडल बनाने के लिए। जो एकेडमिशियन है, जो रिसर्चर्स हैं, उनकी एक पब्लिकेशन तैयार हो जाएगी ये 5 मिनट में पूरी है। ओके, अब इसमें क्या है कि ये डेटा आ गया, यू हैव नॉट यूज्ड एनी कमांड टिल टाइम, आपने कोई कमांड नहीं यूज की डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, ओनली यू हैव यूज्ड GUI। ओके, नाउ द थिंग इज, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट मतलब हम डेटा किस में लेके आ रहे हैं, मैटलैब के अंदर, ताकि हम प्रोसेस कर सकें, एनालाइज कर सके डेटा को। नो दिस इज इंपोर्ट। अब डेटा मेरा सारा आ गया, इंपोर्ट हो गया। नो जस्ट सी इन दिस पर्टिकुलर विंडो, Gulshan sir, are you able to see this original data set features, all models, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब सर देखो कि we have just see here, अब यहाँ पे डिसीजन ट्री के सारे एल्गोरिथम दिए हुए हैं, जो भी लिटरेचर में, जहाँ जो भी एक्चुअल मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ हम कह सकते हैं कि बुक्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के सारे मॉडल्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। नेव बेस जो क्लासिफिकेशन होती है उसके सारे एल्गोरिथम्स जो हैं वो दिए हुए हैं। स्पोर्ट वेक्टर मशीन सारे एल्गोरिथम दिए हुए हैं। आप देखो कि इतने सारे एल्गोरिथम इसमें इनबिल्ट हैं, आपको किसी का भी कोई भी कोड नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप एक BSc के स्टूडेंट को, आप एक पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट को, आप उसको ये असाइनमेंट दे सकते हो कि तेरे पास ये डेटा है, तूने इस डेटा का एनालिसिस करके बताना है कि कौन सा जो एल्गोरिथम है, आप उसको 2-3 एल्गोरिथम दे दो कि कौन सा एल्गोरिथम बढ़िया है, वेदर नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन बढ़िया है या स्पोर्ट वेक्टर मशीन बढ़िया है। ये एक प्रैक्टिकल हो सकता है। ओके, सो मैंने क्या किया, सपोज मैंने यहाँ पे लीनियर SVM सिलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और मेरे को क्या यहाँ पे यूज करना है, दिस ट्रेन बटन, मैंने ये प्रेस कर दिया एंड आप देखो कि यहाँ पे मेरे को अभी ये क्या आया, यहाँ पे आंसर एक्यूरेसी 87.6%। सो वट एवर द मॉडल, ये मेरा एक मॉडल बन गया, ये मेरा एक रिसर्च पेपर तैयार हो गया कि मैंने लीनियर SVM जो है वो मॉडल लगाया अपने डेटा के ऊपर और मेरी एक्यूरेसी जो थी वो कितनी आई, 87.6%। अब जो मैं बात कर रहा था मैटलैब की ग्राफिकल एनालिसिस की, विजुअलाइजेशन टूल की, मैं कहता था कि हाँ, जब आपके पास एक देखो फाइनल रिजल्ट तो आपके पास आ गया, अब आप चेक करना चाहते हो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स क्या थे, जहां ग्राफिकली क्या रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या बनी, एरिया अंडर कर्व कितना था, वो सारा कुछ एनालिसिस करना चाहते हो। जस्ट सी दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स, मैंने इसको क्लिक किया, मेरे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स हो गई, निकल के आ गई। ओके, तो इसमें वो बता रहा है कि टोटल 26 केस थे एक क्लास के, उसमें से उसने 13 गलत क्लासीफाई कर दिए, मतलब 26 और 13 कितने हो गए, 26 और 10 39। ओके, 39 में से 13 इमेजेस जो थी वो उसने गलत क्लासीफाई कर दी। एक्चुअल में उनको डिजीज थी बट सिस्टम ने कह दिया कि डिजीज नहीं है, और इसमें से 203 में से 80 टोटल जो 203 प्लस 80 हो गई, 80 गलत क्लासीफाई कर दी। सो दिस इज, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक मॉडल रन करने के बाद दीज आर द आउटपुट्स जो हमें ऑटोमेटिकली इसमें मिल जाती हैं। दिस इज द ROC कर्व, उसने ROC कर्व भी अपने आप ही जनरेट कर दी। सो इफ दीज आर द पैरेलल कोऑर्डिनेट प्लॉट, वो ऑटोमेटिकली ये भी, सो दीज आर द ग्राफ्स जिनको मैं एनालाइज कर सकता हूं। सो दीज आर द थिंग्स जो मैं देख सकता हूं कि मेरा डेटा जो है वो कैसा है, उसकी स्कैटरनेस कैसे है। इवन अब एज ए
मतलब मैं स्टूडेंट जहाँ कंप्यूटर इंजीनियर जहाँ जिनको लगता है कि नहीं हम अब इस चीज में चेंज करना चाहते हैं, मेरे को तो कोड चाहिए, मैटलैब का कोड चाहिए सारा, ठीक है। तो जस्ट सी हियर जनरेट फंक्शन, मैं इसको क्लिक करूंगा, मैंने सारा काम GUI बेस्ड किया है, बट जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा मेरे को सारी की सारी जो कोडिंग है वो निकल के मिल जाएगी। जस्ट सी, सो दिस इज द कोड जो इस पर्टिकुलर मॉडल के बैकएंड पे बना है। ये सारा कोड उसका तैयार हो गया, वो मैटलैब ने ऑटोमेटिकली तैयार कर दिया हमें। नो, अगर आप अपनी PhDs कर रहे हैं, जहाँ जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं जो वो थीसिस करते हैं या कोई कुछ प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, नाउ दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड, कि उसमें कोई अगर चेंजेस करनी है, उनको लगता है कि अच्छा, जैसे हम कई बार डेटा की नॉर्मलाइजेशन करते हैं, फॉर नॉर्मलाइजेशन वी हैव डिफरेंट वेज, है ना। अब आप चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर मॉडल में बाय डिफॉल्ट उन्होंने ये नॉर्मलाइजेशन लगा। अब एक और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आई हैव क्लोज द स्क्रीन। इवन जैसे जब आप कोई एल्गोरिथम लगाते हो, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो आपको सेट करने होते हैं, देयर आर सर्टेन वैल्यूज, है ना, जो आपको सेट करनी होती हैं। तो वो वैल्यूज भी आप इसमें पैरामीटर सेटिंग सारी कर सकते हो। So just see here, this is the one application that I have shown you, app, कि by making use of this particular app, आपकी कोडिंग कहीं पे यूज नहीं हुई, कुछ नहीं यूज हुआ, बट आपका काम हो गया। एंड डिवोट टाइम इन एनालिसिस पार्ट, आप एनालिसिस पे ज्यादा काम करो। इवन अभी तो मैंने आपको ये बताया कि थोड़ा इजी वे में आपको लगे, अदरवाइज आप एक स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, वो भी चीजें सारी पॉसिबल है, बट अगेन जो टाइम है वो मेरे को लगता है अभी परमिट नहीं करेगा हमें इतना कुछ करने के लिए। कुछ लोग हैं जो न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करते हैं, वी हैव दैट न्यूरल नेटवर्क्स, है ना, वी हैव दिस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ड्राइविंग के रिलेटेड कुछ आपने कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की कार्स जा रही हैं, यू कैन ऐड रोड हेयर, ये आप क्रिएट कर सकते हो। ये देखो रोड, ये आपने सिनेरियो क्रिएट कर दिया, एक ये रोड बन गई है एक, ओके, दिस इज रोड। आप यहाँ पे कार्स ऐड कर सकते हो, दिस इज वन कार, ये कार ऐड हो गई। अब आप ये देखो, आप यहाँ पे सारा व्यू कर सकते हो, ये देखो। तो मॉडलिंग पार्ट भी इसमें हम साथ साथ में कर सकते हैं, वेरी इजी, ड्रैग एंड ड्रॉप। आप लगता है कि अच्छा जी यहाँ पे अगर रेडार अगर आप लगा दो, है ना, कुछ मॉनिटरिंग के लिए, सो दिस इज द वे कि आप जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो इसमें वो कैसे करते हो। वो डिपेंड करता है कि आपने इन एप्लीकेशन एरियाज में जाना है कि नहीं जाना, जहाँ आपने बेसिक जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो आपने वही तक ही सीमित रहना है, वो डिपेंड करता है। तो अगर आपका कुछ ऐसा है कि आप आगे जा सकते हो, then you can explore these type of application. So this is I think सारे बोर हो गए होंगे। No, thank you, sir. That your talk was very interactive, and the decision to choose you as a source person is good. You have actually मैंने आपको कल रात को ही जैसे बताया था कि ड्यू टू दैट AICTE अप्रूवल प्रोसेस वी आर वेरी बिजी। मैं रात को आपको बताया था ना कि 8 बजे घर पे पहुंचा और वापस आया कॉलेज, एंड अगेन आई गो बैक एट 10 o'clock। तो वो मॉर्निंग में भी सुबह आना, वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, इसलिए मैं अभी इतना तैयारी नहीं कर पाया जो मैं एक्चुअल में करना चाहता था। तो बट if you have any question you can ask. मैं आपको एक छोटा you have sir rightly has given the true definition of MATLAB. Actually it is an ocean, so it will not be sufficient to complete the whole MATLAB in one lecture. So we will cover the other topics in other lectures. If you want to continue this example, you can. Sir, I will take your 2-3 minutes. This Okay, is okay. one symbolic math toolbox. This is particularly for mathematics people. Okay, ये MATLAB के अंदर ही होता है। अब इसमें आप देखो कि आप कितना कुछ जो है वो मैथ्स के रिलेटेड कर सकते हो। कैलकुलस, नाउ इंटीग्रेशन, ये सारा कुछ मैथ इसमें पॉसिबल है। डिफरेंशिएशन, ये भी इसमें पॉसिबल है। सीरीज एक्सपेंशन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर एनालिसिस, ये भी आप इसमें कर सकते हो। इक्वेशन सॉल्विंग, सिंप्लीफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, है ना। एंड कई बार क्या होता है कि आप जो जे सर जस्ट वेट,
Okay, sir. एक घंटा। तो इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि हम जैसे कोई एक्सप्रेशन या इंटीग्रेशन या कुछ भी हम कर रहे हैं, तो अब साथ में मेरे को लगता है कि आज तक जैसे मैं पढ़ा हूं, है ना, तो हम उस टाइम पे इंटीग्रेशन करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, बट मेरे को आज तक उस टाइम पे ये नहीं क्लियर होता था कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है। मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ वेयर इट इज बीइंग यूज्ड, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मैंने 2 पेज का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बट वेयर दिस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन इज बीइंग यूज्ड। तो मेरे को लगता है कि जो मैथमेटिक्स के पर्सन हैं, जो मैथमेटिक्स पीपल हैं, वो इस पर्टिकुलर टूल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन एरियाज हैं जिस जगह पे आपका मैथमेटिक्स सारा यूज हो रहा है। ओके, एंड सिंप्लीफाई, सब्स्टिट्यूट वेरिएबल्स, ये कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आई विल गिव यू द लिंक कि जिसमें आप लीनियर अलजेब्रा के रिलेटेड, और करना कैसे है ये, अगर आप इस लिंक को क्लिक करोगे, जस्ट सी, इसमें सारा प्रोसीजर जो है वो दिया होता है। आपने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करना है, तो ये सारा कुछ उसमें पॉसिबल है मैटलैब में। इवन अगर मैं मैटलैब में यहाँ पे MATLAB has very good help. Just write here demo and press enter. आपके पास एक स्क्रीन पॉप अप होगी जिसमें आपको हर पर्टिकुलर टूल के रिलेटेड, हर एरिया के रिलेटेड सारी की सारी जैसे हेल्प दी होगी। जैसे ये मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है, मैंने यहाँ पे कर्व फिटिंग का कुछ काम करना है, मैं क्लिक करूंगा, मेरे को गेटिंग स्टार्टेड कैसे इंटरपोलेशन करनी है, स्मूथिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग विल कम कि मैंने ये काम कैसे करना है। तो ये सारा कुछ आप इसमें कर सकते हो। लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन, कौन से फंक्शंस हैं, अगर मेरे को गॉसियन मॉडल्स यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, क्या फॉर्मूला है, ईच एंड एवरीथिंग इज विजिबल। So this is all about from my side related to MATLAB. So if any student or faculty member has any question, they can ask. Yes, any student want to ask anything? Actually, this MATLAB is a ocean, or you can say that this is an elephant. We will eat it in bites. Yes. That is why we have designed a webinar series. So we will cut it into episodes, and we will study every chapter that you have discussed in this first lecture. Thank you, sir, for your interactive lecture. Thank you, sir. Thank you And, very much. Thank you. और आपको देख के मुझे अपने टीचर की याद आ गई। अलजेब्रा हमें पढ़ाते थे, जब वो क्लास से बाहर जाते थे तो जाते जाते 10-12 थ्योरम लिखवा जाते थे वो। मेरी जो अलजेब्रा के 10-12 रजिस्टर भर चुके थे। दैट्स रिमेंबर मी। तो अच्छा टीचर का यही निशानी है, वो जाते जाते वो कोशिश करता है कि जितना वो बता सके। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा था सर, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे आए और आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया। वी आर थैंकफुल। और